Hello guys, today I will discuss about ISRO interview. Actually, I got message from many aspirants and all the aspirants are having some doubts, and these doubts are very common and it can come to any aspirant's mind. So they have asked through social media or through my contact number. That time what I thought that I will note down all these doubts, and the person who are not connected to me through social media or they are not having my contact number, they will also get the benefit of these questions, because these questions are very common. It can come to any parent's mind, and you have to be prepared for these doubts. Actually uh, some person actually working in public sector, or some person who is working in IT sector, so whether an OC is required or not during interview. And other person who asked is like project, BTech project or MTech project. Actually they told actually their project is very basic level, means they just did the project for getting the passing grade only. So whether it will affect their interview committee or not, or they can change their project and they can present their some other projects. So these are the doubts they have asked, and some other doubts that I created and I will add here, like which subject you have to cover, means जैसे कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका 5 फेवरेट सब्जेक्ट जो है, दीज आर द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर द इंटरव्यू पैनल ऑल्सो, सो विच सब्जेक्ट यू हैव टू कवर. तो ये हो गया. एंड आई विल डिस्कस अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, मीन्स जब आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो विच लैंग्वेज यू हैव टू सेलेक्ट, मीन्स आपको इंग्लिश में आंसर देना है और यू हैव टू सेलेक्ट हिंदी, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में मैक्सिमम मेंबर विल बी फ्रॉम साउथ ओनली. सो आपको किस तरह वहाँ पे टैकल करना है, मीन्स आंसर वेदर यू हैव टू गिव इन इंग्लिश और हिंदी. तो ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि व्हाट यू हैव टू डू, मीन्स व्हाट इंटरव्यू का सिनेरियो कैसे होगा. आप जब वहाँ पे बिल्डिंग में इंटर करेंगे तो क्या होगा. Actually, first they will give you the form. You have to fill one form. All the details you have to fill again. Your 10th marks, 12th marks, your BTech marks, and if any experience is there, that experience also you have to fill. So these things you have to fill there. So that time they will ask you, if you are working in some IT firm or some anywhere, if you are working, so they will ask about the NOC. If your company is not providing the NOC, means some PSUs हैं ऐसे जैसे BSNL है, RVNL है, और ऐसे कुछ PSUs हैं, दे विल नेवर गिव यू NOC. अगर आप NOC के लिए अप्लाई भी करते हैं तो दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. तो इन दिस केस यू कैन डू, you can just send a formal mail to your HR or the senior just above your some senior may be there, so you can send one formal mail to them. Okay, you just mention there, okay, I am going for this interview. If I will get select, so I will within notice period मैं आपको एक मेल दूंगा and I will leave this company, like that some formal letter you write and you send to your senior. और उस मेल का एक कॉपी लेना, and that copy you can bring here and you can give to interview panel. That is more than sufficient for clearing this NOC thing. If और कुछ बंदे जो कि अपने सीनियर्स को मेल भेजते हैं, उनके सीनियर इस NOC मेल को रिजेक्ट कर देते हैं, वो उन दोनों कॉपी को लेके आओ और यहाँ दे दो. तो उससे ये होगा कि आपका ये NOC वाला पार्ट तो हो जाएगा. तो NOC की प्रॉब्लम तो नहीं है, बस आपको एक फॉर्मल मेल भेजना है. अगर इनमें सबसे प्रॉब्लम है, आपको अपने एम्प्लॉय ये नहीं बताना कि आप इंटरव्यू ले जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन ये ना करिए कि आप यहाँ पे वर्किंग है या आप यहाँ पे काम कर रहे हैं. ऐसा आप मेंशन ही ना करिए. यू जस्ट सो आई एम जॉबलेस और मैं इस इंटरव्यू के लिए आया हूँ. तो NOC के लिए आप ये कर सकते हैं. अब आई बात प्रोजेक्ट की, मीन्स फॉर प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव टू डू. एक्चुअली अब प्रोजेक्ट जो है, अगर आप देखेंगे तो मैंने दिल्ली में अपीयर किया था इंटरव्यू. उस टाइम उन्होंने 50% लोगों से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था एंड 50% लोगों से प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा था. तो ये डिपेंड करता है कि आपका पैनल कौन सा है. अकॉर्डिंग टू पैनल दे विल डिसाइड. अगर पैनल जैसे चेन्नई हैदराबाद में जो पैनल था उसने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा था, तो 50% चांस है कि वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे. और आपका प्रोजेक्ट बेसिक लेवल है या एडवांस लेवल है, ये डिपेंड करता है आप पे, आप वहाँ पे प्रेजेंट कैसे करते हैं. आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, दे विल गिव ओनली 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स में आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे आपको एक राइट अप्रोच निभाना पड़ेगा. मैंने क्या अप्रोच लिया था, मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट को ब्लॉक डायग्राम से दिखाया था. तो ब्लॉक डायग्राम से अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं कई ब्लॉक्स बनाऊंगा, और मेरा अगर बेसिक लेवल भी प्रोजेक्ट है और मैं उसको 4 या 5 ब्लॉक में बना देता हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट एडवांस लगने लगेगा. उनको ही नहीं पता कि तुमने बीटेक में क्या किया है. वहाँ पे जो तुम दिखाओगे, दे विल थिंक लाइक हाँ दैट पर्सन हैज़ डन दिस थिंग. तो आप वहाँ पे दिखाते कैसे हैं ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने किया क्या है.
तो आप अपने प्रोजेक्ट को ब्लॉक डायग्राम में डिवाइड करो, क्योंकि 2 मिनट का टाइम रहेगा, 2 मिनट में आप 1 साल का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट मेक ब्लॉक डायग्राम्स। थ्रू ब्लॉक डायग्राम्स यू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, व्हाट ऑब्जर्वेशन यू हैव टेकन, व्हाट आर द इक्वेशंस यू हैव यूज्ड। इस तरह आप अपने ब्लॉक को डिजाइन करिए। इनपुट क्या था, बीच में इंटरमीडिएट लेवल क्या था, आउटपुट क्या आया, what equation you have used, all these things you just mention there. So you just show them okay I have done many things. ये नहीं दिखाना कि हाँ सर मेरा ये था कि मैंने इनपुट दिया आउटपुट मेजर कर लिया, तो इससे लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। You just write 2-3 equation, 4-5 equation, you just write, you draw some curve and all. So you explain, ऐसा एक्सप्लेन करो कि लगे हाँ आपने कुछ किया है। ये हो गया प्रोजेक्ट का। अब बात आती है कि वो 5 सब्जेक्ट आप कौन से सिलेक्ट करें जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के लिए। तो देखो ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर क्या है। वो इंटरव्यूअर का जो है वो एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, क्योंकि वहाँ पे टेबल पे 10 से 12 इंटरव्यूअर होंगे, इंटरव्यू लेने वाले होंगे। तो उनका जो फेवरेट होगा वो अपने फेवरेट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपको जो फेवरेट होगा वो आपका फेवरेट है, वो उनको मैटर नहीं करता है। उनको कैसा बंदा चाहिए वो वैसा क्वेश्चन पूछेंगे। और इसरो अभी जिस चीज़ में काम कर रहा है वो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो उसी फील्ड में ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर नहीं, क्योंकि उनको उसी फील्ड का बंदा चाहिए। आप बोलेंगे सर मेरा एनालॉग जो है बहुत स्ट्रांग है, यू जस्ट आस्क फ्रॉम एनालॉग ओनली, दे विल स्टार्ट फ्रॉम EMT, दे विल शूट द क्वेश्चन फ्रॉम EMT और माइक्रोवेव फ्रॉम एनी अदर सब्जेक्ट। तो ये आप अपने दिमाग में मत रखो कि आई विल प्रिपेयर दीज 5 सब्जेक्ट्स ओनली। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स की लिस्ट दूंगा, ये सब्जेक्ट आप अगर पढ़ के जाएंगे तो ये आपका भी फेवरेट होगा और ये उनका भी फेवरेट होगा। तो इस तरह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और इस तरह उनके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके भी फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद बात आती है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने कैसे हैं। इंग्लिश में देने हैं, हिंदी में देने हैं, इंग्लिश या हिंदी दोनों में देने हैं। एक्चुअली अगर इसरो का सेंटर्स देखा जाए, मीन्स द चेयरमैन विल कम फ्रॉम सम इसरो सेंटर, सम डायरेक्टर और सम DD विल कम एज ए चेयरमैन। तो दे बिलोंग्स टू साउथ रीजन, तो उनकी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं होगी। इफ़ यू वांट टू गिव आंसर, मीन्स अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वहाँ पे कोई भी आंसर, वहाँ पे ना आपकी HR लेवल की टेस्टिंग हो रही है, ना मैनेजरियल लेवल की टेस्टिंग हो रही है, वहाँ आपकी टेक्निकल की टेस्टिंग हो रही है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आंसर देने में, यू जस्ट टेक द पेन, आपके पास ब्लैक बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा, कोई भी होगा, वहाँ पे आप ड्रा करिए, जो भी प्रोसेस है मेंशन करिए, आंसर लाइए और उनको दिखाइए। मीन्स टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्शन की ज़रूरत है। तो आप अपने एक्शन के थ्रू योर एक्शन यू कैन कन्वे योर आंसर। आपको आंसर कन्वे करना है, आंसर कन्वे करने के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ब्लैक बोर्ड मिलेगा, वाइट बोर्ड मिलेगा, वाइट पेपर मिलेगा, कोई पेपर मिलेगा, बस पेन लीजिए, अपने आंसर्स को वहाँ पे मार्क करिए। और कोई भी आंसर अगर आपको कन्वे करना होगा, मीन्स उसको वोकली आंसर देना होगा, तो वो मैक्सिमम 1 और 2 लाइन होगा। और उसमें जितने भी टेक्निकल टर्म है आप उसको इंग्लिश में बोलिए, जितने भी टेक्निकल टर्म नहीं है आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में बोलने के लिए, आप धीमे हिंदी, अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो स्लो हिंदी बोलिए। फ्लुएंट हिंदी में वो कंफर्टेबल नहीं है, और फ्लुएंट इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो जो जितने टेक्निकल टर्म हैं उनको इंग्लिश में लीजिए और थोड़ा हिंदी जोड़िए और धीरे धीरे बोलिए। मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी टेक्निकल आंसर रहेगा उसको अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो पेन उठाइए, ब्लैक बोर्ड पे अपने एक्शन से उनको कन्वे करिए, क्योंकि टेक्निकल आंसर देना है आपको, वहाँ पे HR को खुश नहीं करना है। तो इस तरह ये आप अपना बॉडी लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और उनमें जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर कैसे देने हैं। मेन मैटर करता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप कैसे देते हैं। आंसर सबको पता होता है, लेकिन अगर आपने आंसर थोड़ा ऐसे अंदाज से दिया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट विल डिपेंड अपॉन योर दिस क्वेश्चन ओनली, और आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप थोड़ा घुमा के देते हैं तो उसमें जो टेक्निकल टर्म आएगा दे विल आस्क फ्रॉम दैट टेक्निकल टर्म ओनली, तो वो डिसाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो कोई भी आंसर देने के पहले फ्रेम योर आंसर को फ्रेम करो। और एक चीज़ दिमाग में रख लो, दे विल गिव ओनली 6 to 10 सेकेंड ओनली सोचने के लिए। तो आपको 6 से 10 सेकेंड में ही अपने आंसर को फ्रेम करना होगा और उस आंसर को फ्रेम करके आंसर देना होगा। और ये दिमाग में रखिए कि अगला क्वेश्चन उसी आंसर पे आएगा। सो किसी भी इंटरव्यू को चलाने वाला एस्पायरेंट्स होता है, ना कि इंटरव्यू लेने वाला। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप उसको किस तरह ले जाना चाहते हैं। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ कि बहुत लोगों से पूछा जाएगा, अगर आपको कोई भी वेव मिला है, आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी कर्व जनरेट करना है,
सिंगल फ्रीक्वेंसी कर्व जनरेट कैसे करेंगे। जैसे स्क्वायर वेव मिला है, स्क्वायर वेव से आप साइनसॉइडल वेव कैसे लाएंगे। इसके कई आंसर हैं। बहुत लोग बहुत आंसर देंगे, बहुत लोग इंटरव्यूअर को खुश करने के लिए बोलेंगे सर LC ऑसिलेटर, RC ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर का नाम बताने लगेंगे। जैसे आप हार्टले ऑसिलेटर बताएंगे वो हार्टले में आ जाएंगे। अगर आप हार्टले में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपकी लग गई वहीं रंग का। तो आप बहुत लोग इसका आंसर इस तरह देंगे, सर वी विल यूज ओपैम्प, ओपैम्प का यूज़ कर सकते हैं, सो CRO का यूज़ कर सकते हैं, CRO का यूज़ करके भी सिंगल फ्रिक्वेंसी जनरेट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप पे कि आप किस आंसर के लिए कंफर्टेबल हैं। जो बंदा हार्टले ऑसिलेटर, कॉल्पिट ऑसिलेटर इन सब के लिए कंफर्टेबल है वो हार्टले ऑसिलेटर बोले। जो बंदा इनसे कंफर्टेबल नहीं है वो RC सर्किट के साथ कंफर्टेबल है, वो RC सर्किट को 3 बार कनेक्ट करके बता सकता है कि सर मैं इसे जनरेट कर सकता हूँ। जो बंदा RC सर्किट से भी कंफर्टेबल नहीं है, जो हार्टले से भी कंफर्टेबल नहीं है वो, और जो बंदा इससे कंफर्टेबल है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जिसका कि फंडामेंटल ही RC सर्किट है, तो वो बोल सकता है कि सर CRO हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस बंदे से CRO पे क्वेश्चन आएगा। जो बंदा RC यूज़ करेगा उससे RC का आउटपुट पे क्वेश्चन आएगा। जो बंदा हार्टले यूज़ करेगा उससे हार्टले पे क्वेश्चन आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या यूज़ करते हैं। किसी भी क्वेश्चन के 3 या 4 आंसर होंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर जो है, उस आंसर को आप देते समय ये ध्यान रखिएगा जो टर्म आज आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टर्म पे होगा। तो डिजाइन योर आंसर, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। तो इस तरह आपको आंसर देना है, ऐसे ही आपको वहाँ पे टैकल करना है। कोई भी इंटरव्यू आप चलाएंगे, ना कि आपका इंटरव्यू लेने वाला। तो ये डिपेंड करता है कि आप आगे, और इंटरव्यू का टाइमिंग जो होगा मैक्सिमम 30 to 35 मिनट इंटरव्यू चलेगा। तो उस 30 से 35 मिनट में अराउंड 20 मिनट आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आप 20 मिनट मैनेज कर गए तो आप इंटरव्यूअर को इफेक्ट डाल सकते हैं कि हाँ ये बंदा इसमें कैपेबिलिटी है, ये काम कर सकता है। तो ये आप दिमाग में रखिए। कोई भी आंसर बनाना होगा अभी से सोचना शुरू कर लीजिए कि हाँ अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आई विल गिव आंसर लाइक दिस, आई विल यूज दीज टर्म्स ओनली बिकॉज आई एम फेमिलियर विद दीज टर्म्स। जिससे फेमिलियर हो वही यूज़ करिए। कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखिए, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करिए। वो कीवर्ड्स कहीं कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन, उसको उन कीवर्ड्स से रिलेट करिए क्योंकि उन कीवर्ड्स में आपकी महारत है। धोनी को अगर बॉल मिलेगी उसको पता है किस रीजन में आएगी तो मैं छक्का मार दूंगा। कोहली को पता है कहाँ आएगी तो मैं चौके छक्के मार दूंगा। तो आप अपने रीजन सेलेक्ट करिए, उन्हीं रीजन के क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को उन्हीं रीजन के थ्रू लेके जाइए। तो इससे आप बहुत आसानी होगी कि आगे के क्वेश्चन क्या होंगे। आगे के क्वेश्चन आपको पता होंगे कि हाँ ये आने वाले हैं। RC सर्किट वाले को पता होगा कि हाँ मुझे एक इनपुट दिया जाएगा, पूछा जाएगा RC सर्किट का आउटपुट क्या होगा। कॉल्पिट वाले को पता होगा कि हाँ हार्टले बोला हूँ तो कॉल्पिट पूछेगा। और वो CRO वाले को पता है कि हाँ मैं CRO दिया हूँ तो CRO के पूछेगा इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है और उसके वो क्या कहते हैं वोल्टेज क्या होता है, उसके बीच का एनोड के बीच का वोल्टेज क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। उनसे CRO वाले से क्वेश्चन का एक क्वेश्चन भी लिखवा सकते हैं कि वो D की वैल्यू क्या होगी या तो ये स्मॉल d की वैल्यू क्या होगी, ये सब क्वेश्चन भी लिखवा सकते। तो आपको पता होगा कि हाँ आगे आने वाले क्वेश्चन क्या है। तो ये ऐसे करके आपको आंसर देने हैं। आपको पहले क्वेश्चन को सुनना है, 6 से 10 सेकंड में आपको आंसर फ्रेम करना है। अपने जो दिमाग में कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है और आंसर देना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता पाऊँगा, डायरेक्टली यूज से सॉरी। वो सॉरी जो है आपका इंटरव्यू में चांस कम नहीं करेगा, बल्कि आगे आने वाले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से बता सकते हैं तो वो आपके चांस को बढ़ाएगा। क्योंकि टाइम तो फिक्स है, 30 से 35 मिनट ही वो आपको देंगे। तो 30 से 35 मिनट आप या तो बेवकूफ़ बना लीजिए, तो सॉरी बोल के कोई अच्छा क्वेश्चन लेके अच्छे से एक्सप्लेन करिए तो उनको लगे हाँ इस फील्ड में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप फील्ड सेट करिए, आप कीवर्ड्स सेट करिए, उन्हीं कीवर्ड्स को पिक करिए, उन्हीं फील्ड को पिक करिए, उसी के थ्रू उनको ले जाइए तो उनको लगेगा हाँ इस फील्ड का बंदा ये एक्सपीरियंस है, ये बंदा ये कर सकता है। अब रही बात प्रोजेक्ट में, आप प्रोजेक्ट जैसे ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट पहला तो अगर आपसे प्रोजेक्ट पूछे तो आप वहीं पे जीत गए, आपका सिलेक्शन वहीं पे हो गया। क्योंकि प्रोजेक्ट में ही आप ऐसे टर्म यूज़ कर लीजिए कि उनका सारा इंटरव्यू का टाइम प्रोजेक्ट में ही चला जाए। वो प्रोजेक्ट से उठाएं, प्रोजेक्ट में ही चलते रहें। आप एनालॉग में प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत अच्छा। एनालॉग के लिए 30 से 35 मिनट कुछ नहीं होता है। कंट्रोल सिस्टम में किए हैं, कंट्रोल सिस्टम में तो PPI PID लीड लाइक ये समझाते तो आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। तो हाँ, 2 चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, अपनी फील्ड, किस फील्ड में आप स्ट्रांग हैं, और कीवर्ड्स, आंसर में कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, इसको दिमाग में अभी से ही रख लीजिए। अब बात आती है कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए प्रिपरेशन। क्योंकि प्रिपरेशन ये नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और पढ़ते जाइए। सो आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। लाइक कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि कॉमन है, जो कि वो पूछेंगे ही। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। उन 10 में से 5 ऐसे रहेंगे जो अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे ही। उसमें 2-3 मैडम ऐसी रहेंगी कि जो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पूछेंगे ही। तो आपको मैं लिस्ट देता हूँ। पहले तो आपको पढ़ना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सारे बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, इसमें कोई डीप नॉलेज नहीं है, बेसिक है, लियो मियो जियो केपलर्स ला, ये सब जितने हैं ये सबको अच्छे से देख लेना है। फिर उसके बाद आती है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है EMFT। EMFT में आप लोगों को अच्छे से कवर करना है ट्रांसमिशन लाइन। फिर उसके बाद आपको वेव गाइड और एंटीना के जो टाइप हैं उनके एप्लीकेशन क्या है। जैसे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन जितने भी फ्रेम करेंगे दैट क्वेश्चन मतलब उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक उन्होंने मेरे को क्या बोला था कि इफ़ यू आर हैविंग 1 TV एंड 1 एंटीना सेट्स, सो हाउ यू विल कनेक्ट योर TV टू एंटीना। तो उनका मेन मकसद था कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो मतलब कौन सा केबल यूज़ करोगे, तो मैंने कोएक्सियल केबल बोला। सो नाउ आई टोल्ड कोएक्सियल केबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ द इम्पिडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल। सो अब इससे मैंने क्वेश्चन डिजाइन करना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे टर्म लिया कोएक्सियल केबल एंड इम्पिडेंस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पिडेंस। अब मैंने इम्पिडेंस में जो टर्म यूज़ किए वो उनको ले जाएगा एनालॉग की तरफ, LC। तो वो LC सर्किट की तरफ आए, LC सर्किट से आए। फिर उनका अगला क्वेश्चन मेरे से था कि अगर आपके पास इसमें ट्रिगर होता है ना जो स्क्वायर वेव जनरेट करता है, तो उनका था अब वो LC सुन के ये बोल रहे हैं कि आपको सिंगल फ्रिक्वेंसी कर्व बनाना है। तो मैंने समझ गया कि इनको एनालॉग जाना है। मैंने RC यूज़ किया, RC यूज़ किया तो उनको एनालॉग से शिफ्ट करके नेटवर्क पे लेते आया। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यूअर को कहाँ ले जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन से ही दिमाग लगाइए और कीवर्ड्स यूज़ करिए और आप इंटरव्यू को खुद चलाइए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, EMFT हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में जितने भी कंस्टलेशन डायग्राम है, आई डायग्राम है, ये सब अच्छे से देख लीजिए, ये बनवाया जा सकता है। तो आपको कवर कैसे करना है, जैसे वो पूछेंगे 8 PSK और 16 QPSK, इसमें डिफरेंस क्या होता है, वाई वी आर यूजिंग MSK, वाई वी आर यूजिंग FSK। तो डिफरेंस मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल उनका यूज़ क्या है वो पूछेंगे। सिग्मा डेल्टा, AD कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये सब जो जितने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से देखिए, उनकी डिफिनेशन देखिए और उनका आंसर देने का तरीका देखिए। जैसे आपसे पूछा जाए डिजिटल कम्युनिकेशन उनका फेवरेट है, डिजिटल कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर तो बेसिकली नहीं पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो आप सॉरी सर बोल के माइक्रो प्रोसेसर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन और माइक्रो प्रोसेसर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें क्वेश्चन कैसे होगा कि वो पूछेंगे कि लॉजिक फैमिली क्या होती है, तो आप लोग लॉजिक फैमिली में आंसर ऐसे शुरू करेंगे ECL TTL ये वो। दैट इज़ वेरी रॉन्ग वे। आपको स्टार्ट करना है इसको हम डिवाइड करते हैं यूनिपोलर बाईपोलर, फिर उसके बाद सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो सैचुरेशन के जो हैं वो, अनसैचुरेशन के जो हैं वो, यूनिपोलर के जो हैं वो, बाईपोलर के वो हैं वो। तो इस तरह आप जैसे यूनिपोलर बाईपोलर सैचुरेशन अनसैचुरेशन बोलेंगे तो वो डिजिटल से शिफ्ट होके यूनिपोलर पे चले जाएंगे, बाईपोलर पे चले जाएंगे, आपको BJT पूछने लगेंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। मेरा बस यही समझाने का एक मेन है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर हो गया। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है तो बेसिक आंसर दीजिए, नहीं तो सॉरी सर कह के निकल लीजिए, क्योंकि माइक्रोवेव बहुत वास्ट टॉपिक है और कहीं अब यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है और थियोरेटिकली मतलब एग्जाम में कहीं नहीं आ रहा है। तो अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो बेसिक आंसर दे के आप निकल सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जितना भी डिजाइन है, PI PID, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, ये सब सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन तो सब्जेक्ट्स की लिस्ट हो गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, EMFT, डिजिटल कम्युनिकेशन। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मस्त, कोई भी आंसर आप देंगे उसमें एनालॉग आना ही है, कोई भी आंसर आप देंगे डिजिटल कम्युनिकेशन आना ही है, कोई भी आंसर देंगे डिजिटल सर्किट आना ही। जहाँ भी ये लगे कि हाँ सब्जेक्ट्स कॉमन है वो सब्जेक्ट आपको कवर करने ही है। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के बाद आता है डिजिटल सर्किट, डिजिटल डिज़ाइन। डिजिटल डिज़ाइन में ये सब देखना पड़ेगा आपको, काउंटर और हाफ वेव एड है, हाफ एडर और फुल एडर, इन सबका डिज़ाइन वगैरह। तो बेसिक डिज़ाइन ही पूछेंगे। और ये इसके बाद डिजिटल डिज़ाइन में जैसे आएंगे वो शिफ्ट होंगे माइक्रो प्रोसेसर में। तो माइक्रो प्रोसेसर में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे उनका क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास एक डिवाइस है, दैट डिवाइस इज़ वेरी स्लो, और आपका प्रोसेसर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, वो अलग फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है, वो बहुत फास्ट है। तो इनका इंटरफेरेंस कैसे कराएंगे, उस डिवाइस को कैसे वेट कराएंगे, इस डिवाइस को कैसे होल्ड करेंगे। उनका मेन मकसद है होल्ड सिग्नल के बारे में जानने का, वेट सिग्नल के बारे में जानने का, रेडी सिग्नल के बारे में जानने का। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन का वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। आपको उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर ये सिग्नल, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करके बताना है। जैसे उनका आया कि ये डिवाइस स्लो है, ये डिवाइस फास्ट है, तो क्या करेंगे, तो इसमें आपका वेट, होल्ड, HLDA ये सब कवर हो गया। फिर उनका एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे को ऐसा यूज़ करना है एक पेरिफेरल डिवाइस जिसमें कि मैं इंटरप्ट दूंगा
तो मेरे इंटरप्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा मिले उसके, और जो वहाँ पे काम चल रहा है उसको प्रायोरिटी कम मिले। यहाँ पे इंटरप्ट प्रायोरिटी की बात आ गई। फिर उसका डीएमए पूछ सकते हैं, हाउ टू इफ़ यू वांट टू स्टील द साइकिल फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर व्हाट थिंग वी जनरली यूज। तो डीएमए साइकिल स्टीलिंग हो गया, डीएमए बस्ट मोड हो गया। इन सब के जितने भी डिफिनेशन है, इनका प्रैक्टिकल सिनारियो क्या हो सकता है वो आप दिमाग में रख के पढ़ाई करिए। तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो पूछेंगे, आपको ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करके आंसर देने होंगे। तो उनका क्वेश्चन मेरे से यही था कि जैसे आपके पास एक डिवाइस है वो स्लो है, एक डिवाइस है फास्ट है, तो क्या करेंगे। अगर आप किसी ऐसे माइक्रो प्रोसेसर का कोड चल रहा है, आपको चाहिए कि आपका कोड एग्जीक्यूट हो, उसका जब वेटिंग स्टेट आए तो वो माइक्रो प्रोसेसर के कोड को, मतलब जो हमारी मेमोरी का कोड है वो एक्सेस करे। तो इसमें हुआ कि साइकिल को स्टील करना है, काम करना है, छोड़ना है, ऐसे करना है। तो इसके लिए डीएमए यूज़ करेंगे। 4 या 5 पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके नाम 8253, 8255, इनके नाम और इनके जो चिप आईसी का नंबर है वो याद रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से पूछ सकते हैं। जितने इंस्ट्रक्शन है उनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जितना डिज़ाइन वाले क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। डिज़ाइन मीन्स पीआई, पीआईडी, लीड, लैग, कंपनसेटर, ये सब क्वेश्चन, मतलब आपको डिज़ाइन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे उनका एक सिस्टम है, वो बहुत स्लगिश सिस्टम है, उस सिस्टम को वो फास्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत लोग ये दिमाग लगाने लगेंगे इंटीग्रेटर होगा, इस इंटीग्रेटर यूज़ करेंगे तब ये हो जाएगा। बहुत लोग दिमाग लगाएगा कि डिफरेंशिएटर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए आप किस में कंफर्टेबल हैं। आप लीड लैग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप पीआई पीआईडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस तरह आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करिएगा। वेदर यू वांट टू यूज़ कंपनसेटर, वेदर यू वांट टू यूज ये आपका ये जो पीआई पीआईडी है, इनको तो ये इनके अपने सब के एप्लीकेशन जो है वो मैच करते हैं। ये आप डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसकी स्टेबिलिटी पता करनी है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है उनके कई मोड हैं जिनसे आप रिलेटिव स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। अब आपको वहाँ क्या बोलना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे आंसर आप पिक करिए, आप आंसर पिक करिए, उनके कीवर्ड शब्द दिमाग में रखिए। उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है वही आंसर आपको देना है। तो कंट्रोल सिस्टम हो गया, एनालॉग हो गया। तो ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इनके जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने अपने कोरा पेज पे शेयर किए हुए हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँ और उनके मतलब उनका मेथोडोलॉजी, मतलब कैसे आंसर आपको देना है, ये अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आई विल मेक वन लाइव सेशन और मैं आपको ये बताऊँगा कि हाँ आप आंसर कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूँ। क्वेश्चन डिस्कशन चाहते हैं या फिर इंटरव्यू के बारे में ही जानना चाहते हैं या आंसर कैसे देना है इस बारे में जानना। अगर आप ये जानना चाहते हैं आंसर कैसे देना है तो मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पिक करूँगा और उनके आंसर आपको बताऊँगा कि हाँ इसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और जो क्वेश्चन मैंने वहाँ कोरा पेज पर शेयर किए हुए हैं वो कवर भी हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा कनेक्ट हों। मैं चाहता हूँ कि सारे बंदे एक साथ तैयारी करें तो उससे नए नए क्वेश्चन आएंगे। आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन उसके आंसर आपको क्या देने हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन भी कवर होंगे, आपको तरीका भी पता चलेगा कि आपको आंसर क्या देना है। कोई क्वेश्चन होगा, अगर 3 बंदे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो वो तीनों को 3 आंसर पता होंगे। तो मैं बताऊंगा कि हाँ आप अगर इस फील्ड में स्ट्रांग है तो आप ये आंसर दीजिए, आप इस फील्ड में स्ट्रांग है तो आप ये आंसर दीजिए, आप इस फील्ड में स्ट्रांग है तो आप ये आंसर दीजिए। तो इस तरह अगर आप लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे और आपको कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपको ये डाउट है ये आंसर दीजिए, आपको ये डाउट है ये आंसर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पिक कर करके आंसर करेंगे। तो वो लिस्ट मैं आपको कमेंट यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि जहाँ पे क्वेश्चन की लिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लाइव सेशन ले लूँगा, आपको आंसर दे दूँगा। तो ओके बाय।